Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. As you know that we had completed few important points related to chapter 9 in previous class, which we had discussed. Let us see the topics which we had discussed, like women's reforms. In women's reforms, the most important point which you had studied, that is sati practice and movement against it, and the second one, widows and remarriage, and after this the third important point, that is child marriage. And after these, other points are also we had studied, like women's education, and after women's education, higher education, and also women authors. Okay, and after women's author, we have started a new topic, that is caste reforms. Okay, yesterday we had studied about the topic caste reforms, and in caste reforms also we had studied some important points. The first important points which we had discussed, that is condition of the untouchables, and also beginning of the caste reform movements. Okay, these are the topics which included in caste reforms. And also we had started yesterday, or you can say we had studied in yesterday video, social reformers. In social reformers, you had come across the most and immediate one reformer. His name was Jyoti Rao Phule. Okay, we had studied about Jyoti Rao Phule, and today we are going to continue the same topic, social reformers, with other reformers. Let us see other reformers who worked for the upliftment of their society. Okay, and after Phule, let us come towards second one, that is Mahadev Govind Ranade and Ram Krishna Bhandarkar. And after second, third, Swami Vivekanand and Ram Krishna Mission. And fourth one, Kundupuri Veer Salingam and Chanveti Sri Dharalu Naidu and Periyar Ram Swami. And not only this much, after Periyar Ram Swami, we have to also there are some reformers which we should study, the important, that is Sri Narayan Guru, and after Sri Narayan Guru, Mahatma Gandhi, and lastly we will study about Bhim Rao Ambedkar. Okay, so let us start one by one after Jyoti Rao Phule, the second one. Okay, so let us open your book, page number 73. Mahadev Govind Ranade and Ram Krishna Bhandarkar. Justice Mahadev Govind Ranade and Ram Krishna Bhandarkar were two prominent reformers from Maharashtra. They belongs from Maharashtra. Who belongs from Maharashtra? Mahadev Govind Ranade and Ram Krishna Bhandarkar. They belongs from Maharashtra, and they were not famous as only person, but also prominent personality. They were famous as a prominent personality. In 1867, they founded an organization called the Prarthana Samaj, and also in the year 1867, these two together founded that one organization, and that organization named Prarthana Samaj, with the objective of abolishing caste system. Why they have established Prarthana Samaj? Only to
to abolish, खत्म करना था what? Caste system. In 1887, they founded the National Social Conference with the purpose of working for social reforms throughout the country, and also not only one work they had completed but also other work which they started, and the work that was they founded National Social Conference. Why they established or they founded National Social Conference? Only their main purpose for founding this, for working for the for what social reform they wants to work to improve the society throughout the country, not the society of their locality. They want to improve, but they want to improve the society of whole country, means of India. Okay, and next one, that is Gopal Hari Deshmukh. Gopal Hari Deshmukh, particularly known for his writings in Marathi. We know Gopal Hari Deshmukh by as a famous writer in Marathi. Was another prominent social reformers from Maharashtra. He also belongs from Maharashtra. He attacked the priestly class. उन्होंने उनका मेन अटैक किसके ऊपर था, निशाना, उन्होंने किसको निशाना साध करके वो अपनी राइटिंग लिखते थे, किसको, ब्राह्मण्स, स्पेशली priestly class and the caste system. He was called Loktivadi. Okay. Next, Swami Vivekanand and Ram Krishna Mission. Narendranath Datta. His real name was Narendranath Datta, but we called him Swami Vivekanand. Okay. And Narendranath Datta, widely known as Swami Vivekanand, was the most famous disciple of Ram Krishna Paramhans. सबसे उनके जो कहते हैं कि फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे, किसके, रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे, कौन, स्वामी विवेकानंद. After analyzing Indian and Western philosophy, he attacked prevalent superstitions and narrow-mindedness. He also tried to understand, और लोगों को भी समझाना चाहते थे. क्या समझाना चाहते थे? कि लोगों के अंदर अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए और उनकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए. He firmly opposed caste system and untouchability. He was also against caste system and untouchables. He believed in reforming the society through education and social service. He also wanted to improve society, but not in other way. He wants to reform, to change society only by giving them education and also through other method, that is social service. इन दो के जरिए वो लोगों को बताना चाहते थे कि हम कैसे समाज को बदल सकते हैं. नेक्स्ट, कुंदुकुरी वीरसलिंगम. कुंदुकुरी वीरसलिंगम, prominent reformer from Andhra. He belongs from Andhra Pradesh. Two fought against the social evils in the society. He was also fought for the upliftment of lower caste and also for the evils which were prevalent in our Indian society. He encouraged intercaste marriages and fought against the caste system.
उन्होंने लोगों को बढ़ावा दिया कि नहीं, आप इंटरकास्ट मैरिजेस भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और वो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। वीर सलिंगम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल नोन एज ब्रह्म मंदिर। He also started or you can say constructed temples, and that temple name was Brahmo Mandir in 1887, where he construct this temple in Andhra Pradesh. He also established the Hitkarni school in 1918. Underline all these. And also Kundu Puri Veer Salingam also established a famous school in the name of the school, that is Hitkarni school, in 1908. And after Kundupuri Veer Salingam, Chambati Sridharalu Naidu. Sridharalu Naidu started an organization that named Veda Samaj in 1864. He also founded an organization, and his organization name was Veda Samaj, which was established in the year 1864, where at Madras, now present Chennai. मॉडल्ड ऑन ब्रह्मो समाज, और उसकी जो रूपरेखा थी किससे मिलती जुलती थी, किस पर आधारित थी, ब्रह्म समाज। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग द पीपल रिगार्डिंग सुपरस्टिशंस एंड टू एराडिकेट कास्ट इनइक्वालिटी। उनका इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशन एमंग द पीपल, वो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास की भावना थी उसको विश्वास ना करने की सलाह दी। नाउ पेरियार रामस्वामी। इन तमिल पेरियार लिटरली मीन्स ग्रेट मैन। तमिल में पेरियार का मीनिंग होता है ग्रेट मैन, great personality. A.V. Ramaswamy Naicker was regarded in Tamil Nadu as a Tanthai Periyar. He devoted 50 precious years of his life to the service of the downtrodden. उन्होंने अपने पूरे 50 साल किसके उत्थान में लगा दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो लोगों को, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको ऊंचा उठाने में उनके अपनी 50 इयर्स की लाइफ उन्होंने स्पेंड की। His sole aim was to spread the importance of education among the lowest strata of society. और साइड बाय साइड उनका यह भी एम था कि लोकल लोगों में, लोअर सोसाइटी में भी, लोअर कास्ट में भी एजुकेशन को प्रोपोगेट किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, उन्हें भी एजुकेशन दिया जाए, उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके लिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की। ही क्रिटिसाइज्ड द हिंदू स्कल्पचर्स एंड हेजिमोनी ऑफ द ब्राह्मण्स। ही स्टार्टेड द द्रविड़ कच्छगम। उन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू की थी जिसका नाम था द्रविड़ कच्छगम, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए फॉर्म की गई थी, जिस दलित के लिए जो लड़ाई लड़े। उसके बाद से श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु बिलोंग टू द इजहा कम्युनिटी फ्रॉम केरला। ही बिलोंग्स फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रॉम केरला। Having first-hand experience of the oppressive caste system in his earlier years, उनको तो
ये सब कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत पहले से ही पता था। ही कंस्टेंटली वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनटचेबल्स, वो लगातार अनटचेबल्स के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए लगातार वर्क करते रहे। ही स्टडीड संस्कृत, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृत की भी पढ़ाई शुरू कर दी थी, जो कि उस समय में केवल ब्राह्मणों को ही अलाउ था संस्कृत पढ़ना। संस्कृत लिटरेचर इन अ पीरियड व्हेन ओनली ब्राह्मण्स वेर अलाउड, उस समय की बात है जब ब्राह्मण्स ही केवल संस्कृत को पढ़ सकते थे। उस समय उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। Another important contribution was the establishment of temples without the images of deities, और दूसरा क्या था कि उन्होंने मंदिर की स्थापना की। और मंदिर की स्थापना कैसे की? उसमें बिना देवी देवताओं की मूर्ति के, ऐसे उन्होंने मंदिर की स्थापना की। In 1903 he started an organization by the name of Sri Narayan धर्म परिपालना यजम, इस नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की। अंडरलाइन ऑल दिस। द मेन वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू गेट टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर द अनटेबल्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इसको स्थापना इसलिए की कि उनके जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी टेम्पल में एंट्री मिल सके, वो भी भगवान का दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी ना। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद was the founder of आर्य समाज in 1875। अंडरलाइन कर लीजिए। आर्य समाज brought a number of social reforms। आर्य समाज ने बहुत सारे सामाजिक बदलाव लाए। He worked towards the upliftment of women and their education। और यह समाज स्पेशली किसके उत्थान के लिए काम कर रहे थे? वुमेन और वुमेन की एजुकेशन के लिए काम कर रही थी। स्वामी दयानंद बिलीव दैट वुमेन वेर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदा जस्ट एज मैन डिड। उनका कहना था कि वुमेन को भी इतना राइट होना चाहिए कि वो भी वेदा की स्टडी कर सके, जिस तरह से कि मेल मेंबर वेदा की स्टडी करता है ना। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। वी कॉल हिम एज फादर ऑफ द नेशन। वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया। उन्होंने भी इंडिया के लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत काम किया, बहुत सारा योगदान किया। ही इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म एज पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और उन्होंने इसी सोशल रिफॉर्म को मूवमेंट का एक हिस्सा बनाया, आंदोलन का एक हिस्सा, एक पार्ट बनाया। गांधी जी लॉन्च्ड सेवरल कैंपेन्स। उन्होंने कई सारे कैंपेन्स लॉन्च किए अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल के विरोध में उन्होंने कई सारे आवाज़ें उठाई। इट वॉज गांधी जी हु कॉइन्ड द टर्म। गांधी जी नेम्ड द टर्म हरिजन। उन्होंने ही इसका नाम क्या दिया था? हरिजन नाम दिया था। एंड फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ विद अ व्यू टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। उन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि इसके जरिए अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर यह प्रथा चल रही है और शायद अभी कुछ वर्षों तक चलती रहेगी। नाउ भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ अगेंस्ट द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। भीमराव अंबेडकर ने भी अपने बचपन से ही कास्ट से रिलेटेड, कास्ट को लेकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना किया।
आपने एक शायद एक सीरियल आता था, अभी पता नहीं आ रहा है कि नहीं, उसमें भीमराव अंबेडकर को दिखाया गया है कि वो किस तरह के थे और कैसे स्टार्टिंग से लेकर के कि किस कैसे थे और कैसे होने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने भीमराव अंबेडकर बने और किस तरह से उन्होंने संविधान में अपना इतना ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, उनकी कहानी एक स्टोरी के रूप में शायद टेलीविज़न पर दिखाई जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी देख सकते हो बेटा उसको, लेकिन रेगुलर नहीं, कभी कभी उसको देख सकते हो, कुछ उनके बारे में केवल जानने के लिए। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे। बॉर्न इन महर कास्ट, किस कास्ट में बॉर्न हुए थे? महर। हुज मेंबर्स वेर कंसिडर्ड अनटचेबल, जिसको हम अनटचेबल्स के तौर पर मानते हैं। He had first-hand experience of the oppressive caste system. For eradication of untouchability, he organized the All India Scheduled Caste Federation. इसके लिए उन्होंने एक फेडरेशन की स्थापना की, जिस फेडरेशन का नाम क्या था? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। थ्रू हिज वीकली मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट, ही क्रिटिसाइज द हिंदू बिलीफ, जिसमें उन्होंने हिंदू के बिलीव्स को क्रिटिसाइज किया है। टू प्रमोट द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास, भीमराव अंबेडकर स्टार्टेड द बहिष्कृत हितकर्मी सभा, जिसके लिए उन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्मी सभा। This organization worked for the untouchables throughout the country, और ये organization untouchable के लिए पूरे कंट्री में काम करती रही। Now last सिख रिफॉर्म मूवमेंट, अब सब लोग मूवमेंट करने लगे तो बेचारे सिख लोग क्यों बैठे रहते, उन्होंने भी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। Among the Sikhs, reforms were started by सिंह सभा, सिख में भी रिफॉर्म स्टार्ट किए गए, और सिख में मूवमेंट रिफॉर्म्स कौन स्टार्ट किया? सिंह सभा। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन एमंग द सिख, इन्होंने भी वही काम किया जो कि बाकी ने किया, कि उन्होंने एक फर्क इतना था कि इन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए रिफॉर्म किया है, कुछ बदलाव लाने चाहिए कि नहीं, एजुकेशन सिख को मिलनी चाहिए, एजुकेशन सिख को एजुकेशन लेनी चाहिए। द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड द अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट टू रिफॉर्म द गुरुद्वारा इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century. Finally, the struggle resulted in a law passed in 1925. बाद में क्या हुआ, जो उन्होंने मांग की थी लास्टली और फाइनली 1925 में पास आउट हो गया। अकॉर्डिंग टू विच द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाज गिवन द राइट टू मैनेज ऑल द गुरुद्वारा, लास्ट में उनको राइट मिल गया कि वो सारे गुरुद्वारा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, सो इन दिस वे वी हैव completed chapter 9. Tomorrow we will start our next chapter, chapter that is 10. The name of chapter, changes in literature and art. Okay, and also I will send you PDF of exercises as well as a question answer of chapter 9. Okay, so today only this much. Thank you beta.